Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is Civics, Standard 8th, Chapter number 5, the State Government. In this chapter, students, we will study what is the role of the state government. Okay, so let's start students. Background. India has a large geographical expanse with a multicultural population. There is a diversity in language, religion, ways of life, and regional characteristics. It would not have been possible to govern from a centralized place. Students, as we all know, only India is a country. There is a multicultural populations. Okay, there is a varieties of language, religion, different lifestyles. Okay, it would not have been possible to govern from a centralized place. Therefore, the constitution has adopted a federal setup for India. It was decided to form the state on the basis of language. Accordingly, linguistic reorganization of state took place. सेंट्रलाइज से स्टूडेंट सबको हैंडल करना इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हर स्टेट में जो है गवर्नमेंट होती है हर स्टेट की, ठीक है। जो भी इश्यूज़ प्रॉब्लम्स होते हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट सॉल्व करती है, ठीक है। According to the language, they decided to distribute the state. Okay, the nature of government machinery in all state of India is same. अब जो भी मशीन है इंडिया में वो हर जगह पर जो है सेम ही मिलेगी, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन एक्सेप्शन. लेट अस नो स्टडी द गवर्नमेंट स्टेट in with the reference to Maharashtra. In this chapter we will study the reference of the Maharashtra government. Okay, how Maharashtra government work, let us study in the detail. State legislature means assembly where there is a law made. Okay, like the parliament at the central level, every state has its own legislature. स्टूडेंट्स, हर स्टेट की जो अलग अलग गवर्नमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग उस स्टेट में वर्क होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इन इंडिया only 7 states has 2 houses, that is bicameral legislature. Okay, bicameral means 2 legislature house in the state. Legislative assembly. Maharashtra has a bicameral legislature. The member of the state legislature are known as member of the legislative assembly or member of the legislative council. स्टेट में जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जैसे स्टेट में जो असेंबलीज होती हैं वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर ऑफ महाराष्ट्र. Legislature of Maharashtra have 2 houses. Students, in the Maharashtra there are 2 houses is there, mainly Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Okay, these 2 houses is there in the Maharashtra. As you can see students, in the downside this is the Vidhan Sabha. Okay, ये जो है पिक्चर आप देख रहे हो ये विधानसभा की है, ठीक है। हमारे महाराष्ट्र में 2 हाउसेज है, एक तो विधानसभा है जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं एंड एक विधान परिषद जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। दिस 2 हाउसेज इज देयर इन दी महाराष्ट्र. ओके, now Vidhan Sabha, Legislative Assembly. Let's see what it is. This is the first house of the Maharashtra legislature and comprises of 288 members. Students, this is the first house ऑफ द महाराष्ट्र. ओके, मतलब ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ये पहला हाउस होता है जिसमें कि
288 मेंबर्स होते हैं. इन केस देर इज़ ए inadequate representation of the Anglo-Indian community, the governor nominate one member from this community in the विधान सभा. इफ़ इन केस अगर 288 मेंबर में से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में मेंबर में से कोई नहीं है तो गवर्नर को राइट्स होते हैं कि वो कोई ऐसे मेंबर को नॉमिनेट करे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हो. एंग्लो इंडियन मीन्स ए पर्सन हैविंग टू सिटीजनशिप लाइक ब्रिटेन एंड इंडिया. जो 288 मेंबर्स होते हैं उनमें से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं. सम सीट्स इज़ रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड सम सीट इज़ रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स. ओके. महाराष्ट्र इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टेरिटोरियल constituencies for the purpose of election. Students, in Maharashtra there are different areas having elections. Okay. One member is elected from each of the constituencies. Okay. फॉर एग्ज़ाम्पल विधानसभा में 288 मेंबर्स होते हैं. ये 288 मेंबर्स जो है अलग अलग जगह से खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए. ठीक है. टेन्योर ऑफ विधानसभा इज़ 5 ईयर. जो विधानसभा में जो एमएलए होता है वो 5 ईयर्स तक जो है वो अपनी पोजीशन कंटिन्यू रख सकता है. ओके. हाउएवर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इलेक्शन कैन बी हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर. तो 5 साल कंप्लीट होने तक जो है वो इलेक्शन में खड़े हो सकता है. ठीक है. एनी सिटीजन रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र एंड वो हैज़ कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन टू द विधानसभा. विधानसभा के इलेक्शन के लिए कम से कम जो है 25 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए विधानसभा के इलेक्शन में खड़े होने के लिए. ठीक है. स्पीकर ऑफ विधानसभा. द प्रोसीडिंग ऑफ विधानसभा आर कैरी आउट अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द स्पीकर. द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड Vidhan Sabha elect the speaker and deputy speaker of the Vidhan Sabha from the among themselves. Speaker is the presiding officer of the Vidhan Sabha. Is elected of the first meeting of Vidhan Sabha. Elected all the MLAs among themselves. जितने भी MLAs होते हैं विधानसभा में उनमें से ही एक अपने ही मेंबर में से किसी एक को स्पीकर बनाता है. ठीक है. सबके ओपिनियन से. A speaker has many responsibilities which range from the power to prepare the order of the business. मीन स्टूडेंट्स जो स्पीकर होते हैं उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जो भी हाउसेस होते हैं उनको हैंडल करना, मतलब जो भी वर्क है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, जो भी बिल पास हो रहे हैं उनको प्रॉपरली देखना है उनको, फिर उसको आगे प्रोसीड करना है. ठीक है. तो जो स्पीकर होती है उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है. एंड ही हैज़ टू ऑब्जर्व डिसिप्लिन मैनर एंड ही हैज़ ए राइट टू सस्पेंड एनी मेंबर्स behaving misbehaving or misconduct. Okay. In absence of speaker the responsibility is taken over deputy speaker. Maharashtra legislature conduct minimum 3 session in a year. The budget session and monsoon session is conducted in Mumbai while the winter session is conducted in Nagpur. Students, there are 3 session is conducted in a year. First 2 session is conducted in the Mumbai and the 1 session is conducted in the Nagpur. First 2 session is a budget session and monsoon session. Budget session means कि कौन कौन सी चीज़ों पे स्पेंड होने वाला है, कहाँ से जो है मनी मतलब आने वाला है मनी. ठीक है. तो वो बजट सेशन वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. मॉनसून सेशन जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ है वो वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं. ठीक है. अब जो विंटर सेशन है वो नागपुर में होता है. ठीक है.
what we have to take the winter season, what we have to take pre-plan. Okay, so everything is discussed in these sessions. Okay. Executive of Maharashtra. Executive means having the power to put plans, actions, law into effects. Okay. The governor, chief minister and the council minister together from the executive of महाराष्ट्र. स्टूडेंट्स, जितने भी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, इन सब से मिलकर क्या बनती है? एग्जीक्यूटिव बनती है. ठीक है. जो सब डिसीजन मेकिंग और जो भी रूल्स है, जो भी बिल्स है, वो बनाने में इन सब का अपना अपना योगदान होता है. गवर्नर. द प्रेसिडेंट इज़ ए नॉमिनल हेड एट द सेंटर. द गवर्नर इज़ द टिटुलर नॉमिनल हेड एट द स्टेट लेवल. स्टूडेंट, प्रेसिडेंट जो है वो सारे स्टेट्स का हेड होता है. जैसे कि अभी हमारा प्रेसिडेंट्स कौन है? रामनाथ कोविंद. ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है. ठीक है. जितने भी स्टेट्स है वो वहाँ के हेड है. ठीक है. और जो गवर्नर है वो क्या, उन गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं. ठीक है. जो कि वर्क करते हैं स्टेट लेवल पे. गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट्स. ओके. अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर है उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट्स अपॉइंट करते हैं. और जो भी वर्क होता है वो प्रेसिडेंट्स उनको बताते हैं कि कैसे क्या करना है. ठीक है. गवर्नर ऑल्सो इन्जॉय सर्टेन लेजिस्लेटिव पावर. अब गवर्नर के पास भी कुछ पावर्स होते हैं कि वो अपने खुद के कौन कौन से डिसीजंस ले सकते हैं. ठीक है. कौन कौन सी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बिल पास बाय द विधानसभा एंड विधान परिषद. अब विधानसभा और विधान परिषद, ये जो दो हाउसेस है, इनमें उनके पावर्स होते हैं कि यहाँ पर वो बिल पास कर सकते हैं. ठीक है. और आर कन्वर्टेड इनटू लॉ ओनली आफ्टर रिसीविंग द एसेंट ऑफ द गवर्नर. मीन्स कि विधानसभा और विधान परिषद में जो भी बिल पास होता है तो उसके ऊपर जो है साइन, जब तक गवर्नर अप्रूवल नहीं देंगे वो बिल आगे पास नहीं होता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो है उनका मेन पावर होता है. द गवर्नर हैज़ द राइट टू समन द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव व्हेन द लेजिस्लेचर इज़ नॉट सेशन बट द नीड अराइज टू मेक द लॉ. देन द गवर्नर कैन इशू और एन ऑर्डिनेंस फॉर द सेम. If the legislature is not in the session, so governor has a right to need arise to make the law. Okay. Need the participate in the session. Okay. And whatever the issue is related they can solve. Okay. So this is the right of the governor. Now, Chief Minister and Council Minister. The leader of the majority party in Legislative Assembly become the Chief Minister. The Chief Minister include his/her trustworthy colleagues in the Council of Ministers, like the Prime Minister, who is executive head of the Union. The Chief Minister is the head of the state executive. The government of the state is run in the name of the governor, but in reality the administration is carried out by the Chief Minister. Students, currently in Maharashtra having a government of Mahavikas Aghadi. Okay. जिसमें आते हैं कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी जीते हुए एमएलएज होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए. ठीक है. और सबके ओपिनियन से चीफ मिनिस्टर बनाते हैं. ठीक है. बाकी जितने भी एमएलएज बचते हैं उसमें से थोड़े बहुत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं. ठीक है. सिलेक्ट होते हैं. और जितने भी बाकी एमएलएज उन्हें एजुकेशनल मिनिस्टर बना दिया जाता है, हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है. ठीक है. तो अलग अलग
उनके लिए पोजीशन डिक्लेयर की जाती है। ओके। Function of the chief minister. Now let's see, student, what is the function of the chief minister. Creation of the state executive. After proving the majority, the chief minister form his or her council of minister. This is a challenging task because in order to make the council more representative, various regions and social groups like scheduled caste, scheduled tribes, other backward class, women, minority, etc. have to the accommodated. If no party secure a clear majority, different party can come together to form the government. अभी हमने देखा कि सब जितने भी एमएलएज होते हैं जीती हुई पार्टी के, वो सिलेक्ट करते हैं किसे, चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। और जो उसमें जो बाकी एमएलएज बचते हैं उनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ये जो टास्क होता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि किसको जो है ये चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, किससे जो है काउंसिल मिनिस्टर बनाया जाए, ठीक है। तो ये टास्क जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इफ़ इन केस अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी ऑफ सीट नहीं जीतती है तो कोई दूसरी पार्टी जो है मिलकर अपनी दो पार्टी मिलकर जो है अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक है। इन सच केस द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू परफॉर्म द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ गिविंग ए प्लेस टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज़ इन द अलायंस। तो ऐसे सिचुएशन में जो है चीफ मिनिस्टर को जो है अपना अपना जो टास्क है वो बहुत ही डिफ़िकल्टली परफॉर्म करना पड़ता है जब दो पार्टी आपस में मिलती है तो, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल of minister, the chief minister has to distribute the portfolio among the ministers. जब काउंसिल मिनिस्टर्स बन जाते हैं तो उसके बाद में जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करता है, चीफ मिनिस्टर जितने भी बचे हुए मिनिस्टर्स जो एमएलएज होते हैं उन्हें उनके जैसे जो भी उनकी पोजीशन है, ठीक है, जैसे कि किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना देना, किसी को एजुकेशनल मिनिस्टर बना देना, ठीक है, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना देना, किसी को रेलवे मिनिस्टर बना देना। तो हर एमएलएज को जो है जितने भी बचे हुए एमएलएज होते हैं उन्हें हर एक को अपनी अपनी पोजीशन दी जाती है, ठीक है। उसे ही पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूटिंग पोर्टफोलियो ही शी हैज़ टू कंसिडर द पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, लीडरशिप क्वालिटीज़ एक्सेट्रा। अब हर एक को जो है उसकी क्वालिटी वाइज, उसके एक्सपीरियंस वाइज, ठीक है, उसकी लीडरशिप वाइज जो है उसे उसका काम दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं, जिसको अब अलग अलग जो है वर्क डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको अलग अलग काम दे दिया जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्टर्स departments. The chief ministers along with his council of ministers are collectively responsible to the legislative assembly. अब जो भी असेंबलीज होती है, ठीक है, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर्स बेयर द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, बट अल्टीमेट जो भी ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। Absence of the coordination and coordination between the department can affect the working of the government. Therefore, the chief minister has to resolve conflict between department and ensure that they work toward the same goal and in the same direction. अब चीफ मिनिस्टर जो है जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं और सामने वाले को बिलीव दिलाते हैं कि वो उनका जो गोल है वो सेम है, ठीक है। मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स, देयर वर्क्स एंड देयर गोल्स इज सेम एंड देयर डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम, ओके। So they have to coordinate with each other whenever they work together, okay.
नाउ द लास्ट पॉइंट इज लीडर ऑफ द स्टेट। अब हर स्टेट्स के जो लीडर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर लीड द कंट्री, द चीफ मिनिस्टर लीड द स्टेट। द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू मेक न्यू पॉलिसीज बाय द टेकिंग नोट ऑफ प्रॉब्लम कंसर्न द पीपल एंड वर्क टूवर्ड द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। सी, कंट्री में जो है एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, और हर स्टेट्स में अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। वो चीफ मिनिस्टर्स जो है वो स्टेट्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। रिलेटेड मतलब जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ के से रिलेटेड होती है उसे वो सॉल्व करते हैं, ठीक है, और वेलफेयर के लिए वो वर्क करते हैं। द पीपल टू एट द चीफ मिनिस्टर एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। द चीफ मिनिस्टर इंटरवेंस इन इश्यूज फेसिंग द स्टेट एंड कंफर्ट द पीपल। लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर से काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एंड जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो उन्हें ये बिलीव भी दिलाते हैं कि उनकी जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी, ठीक है। महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द प्रोग्रेसिव स्टेट इन इंडिया। द स्टेट lead in sectors like education, industry, service sector, health and social security, etc. Terror attack and Naxalite left-wing extremist movement active in certain region are the two major challenging facing the state of Maharashtra. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो रही है। जैसे कि यहाँ पे मेट्रो है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो है अभी अंडरग्राउंड मेट्रो भी आने वाली है। तो ये जो महाराष्ट्र है जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जो है प्रोग्रेस कर रहा है हर चीज़ में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। बहुत सारी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जैसे कि टेररिस्ट अटैक हुआ या नक्सली अटैक हुआ, तो उस टाइम पर भी जो है हमारी स्टेट्स ने बहुत ही उस मोमेंट को भी बहुत ही चैलेंजली एक्सेप्ट किया और उससे हम बाहर आए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वी स्टडीड इन दिस चैप्टर व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्पीकर, काउंसिल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी इन दिस चैप्टर, यू ऑल कैन आस्क मी स्टूडेंट्स। थैंक यू।